Very good morning, all of you. This episode devoted to all the students who are interested in literature, especially wants to be as a learned or uh, like a writer or poet, because this video contains ornaments for the poetry. How can we write the poetry? How can we write the correct on the basis of the correct rules and regulations, meter, foot, etc. Then, due to so many demands for all the students who are seeing and connected in the Facebook, Instagram, Twitter, and so on. So they are interested to make a video for the poetry, because they always continue to be as a learner, and they are like a fan for me in poetry. So today I'm going to start literature, which are very important to know at the initial stage when we write the poetry. So you are all requested to have to see this video up till the end. Then you will have to flavor of some special quality of the poetry, and the taste, or the taste contains everything related to the poetry. Maybe you understand. And how can we write? How can we write the correct English? How can we speak the correct English? And these are the nutrients of this episode. So thank you very much. Let's proceed for the. This is the first stair to know the right way. How can we know whenever the flow of English comes through our mouths? Then there would be some special rules which follow. Then when we follow, then we will be able to speak the correct English. Then we have to start from the initial stage, and the first initial stage is beat. What is beat? Beat, it is also called thap in Hindi. Whenever we strike on any object by hammer, or hit on any object, one hit. Hit may be strong or weak, but one hit, how the sound is formed? The type of sound is formed, that is called beat. Beat means sound of a click or a stroke on something which produced sound. किसी भी वस्तु के ऊपर अगर हम एक बार टक्कर मारे, तो उससे एक बार एक ध्वनि अगर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीट. उसको हम हिंदी में थाप बोलते हैं. और थाप का मतलब जैसे तबला है, गिटार है, सारंगी है, जाइलोफोन है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें एक बार अगर हम उसको तार को खींच के छोड़ते हैं तो जो साउंड आता है उसको हम बीट बोलते हैं. एंड देन आता है जैसे हार्ट बीट है, हार्ट बीट धक 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 धक. डायस्टोल्स एंड सिस्टोल, diastole and systole becomes as a heartbeat, because in science language the heartbeat is called diastole and systole. Diastole and systole, there is a difference, and these are the two beat. And tick tick of clock, this is also, there is a difference of one tick to other tick, and thus one tick is called beat. And whenever we speak or read English,
then wherever we speak one time, then that is also called beat. जैसे go, go has only one beat. Tick, tuck, and so many types of the sound. Whenever it is produces only one time, then you can say B. It is called beat or thap in Hindi. Hindi is also written because initially we are Indian, so we must aware to know. Whenever we know the correct Hindi, then we also able to know the correct English. Otherwise, no, it's not chance. If you know the correct Hindi, then you may also able to know the correct English. Let's proceed for the next, tempo. What is tempo? Tempo, it is called lay in Hindi. Tempo, lay. Tempo is the distance between each beat linked each other. Thak, thak. There is a time difference of time. One thak from other. Tick, tick, tick. One tick has much difference from other tick. So this is called tempo. Difference between. Tempo is the distance between each beat link each other. Beat per minute. अगर हम एक टिक टिक इसके बाद फिर हम 1 मिनट लेते फिर टिक, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बीट पर मिनट. एक चीज और भी, अगर डिस्टेंस डिक्रीज होती है एक टिक से दूसरे टिक की, तो टेम्पो इंक्रीज होता है, लय बढ़ती है. लेकिन अगर डिस्टेंस 2 बीट के बीच में इंक्रीज होती है तो टेम्पो जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. I don't want to take much time to explain this very simple word, but it is necessary to know from the initial point about the literature. Beat, tempo, tempo is the distance between each beat linked to each other. And whenever we take the 1 minute from one beat to another, that is called beat per minute. If distance decreases, then tempo increases, and if distance increases, then tempo decreases. That's all. This is the main or very, very important word which is necessary to know. We have to, actually, I am going to start from this point. That was the very simple and introductory points. So, I would like to make our attention toward the syllable. What is syllable? What is syllable? शब्द खंड, किसी भी शब्द के टुकड़े, शब्द यानी वर्ड का टुकड़ा यानी साउंड का जो टुकड़े हो जाते हैं, या शब्दांश या शब्दों के अंश या पार्ट ऑफ वर्ड, इसको हम सिलेबल बोलते हैं. सिलेबल, सिलेबल्स ने सिलेबल. अब ये सिलेबल क्या होता है ये थोड़ा सा जानेंगे. सिलेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट. इसको हम एक बीट भी बोल सकते हैं. सिलेबल को हम एक बीट भी बोल सकते हैं. ध्यान दीजिए, सिलेबल, सिलेबल और बीट ये सिमिलर वर्ड हो सकते हैं. दे कैन बी synonym to each other, because when we say that, for example, if we say the father, 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 there is a 2 parts of the father word. There is a 2 parts of the father word. Father. There is a much difference in taking time and using energy. And fa takes more energy in comparison of the der. Father. So there is a much difference in energy, speaking in energy, and also whenever we make our sound more loud, father, low, father,
Father. In the same way, mother, sister, daughter, etc. So these words, when we speak by our mouth, then we always try to understand there is some words which are there is a parts of a word which takes some which take a time. A part of this word takes much time, or that takes more time. So, for example, I can say that a word which can be divided into two or more than two parts. A word, a group of alphabets which has sense, but a group of alphabets which has sense is called word. So I am trying to explain about the word, same word. A word can be classified into two or more than two parts. Each parts needs a different types of the energy, different types of the loudness or lowness. So due to this energy level, we can divide a word into, each part is called syllable. A word is classified in two or more than two parts, then each part can be said, or would we like to say about the syllable. Syllable, Shabd Khand, Shabdans. Syllable is a combination of alphabets which make dominant vowel sound. It's very important, dominant vowel sound. It is not depend only vowels. Vowels A, E, I, O, U, etc. These are the vowels, English vowel. And the Hindi vowels are I, U, A, O, Ang. So sometimes if we face some difficulty, then we can also guess that the English alphabets, the Hindi alphabets or Hindi vowels are translated into English vowel with the same English vowel A, E, I, O, U. Hindi vowel I, E, U, etc. up to Ang, they are translated with the same vowel A, E, I, O, U. So, in Hindi vowel or English vowel, there is no difference in speaking or making sound. And I would like to make your attention towards this important point, that what is the way, what is the mission, what is the goal to study the subject. There is two types of the people who think about the we are going to study about this subject for to be as a good learner or a good student, or be as a rich person by getting more and more money by using this knowledge. So there is some different ways. Then if you want to take the enjoyment, take the pleasure, take the notorious enjoyment content in the quality of the literature, not only literature, but every subject has its own flavor. We can't say that only English, but mathematics, English, Hindi, socialism, etc. Every subject contains the deep enjoyment. If we study this because of you want to be as a good learner and taking enjoyment. So, please try to make your attention towards this, that we are going to enjoy this subject, not to only become as a good civilian, good worker or the officer. It's not matter. Please, if you want to make your pleasure in the depth of the heart, then you have to take it seriously, not to make it as a subject of
getting more and more money. Then we are talking about the syllable. Syllable is a combination of alphabets. यानी शब्द खंड जो है अक्षरों का एक संगठन है, which makes dominant vowel sound. Very, very important. Dominant vowel sound. It's important. I would like to say dominant vowel sound. This is very important. Vowel sound. Vowel sound means sometimes the consonant also makes a vowel sound, just Y. If you pronounce the Y, then it ends with E. Y, E. Then it gives vowel sound. Then this consonant behaves as vowel. So it is a little vowel sound. Syllable is a combination of alphabets. Syllable शब्द खंड अक्षरों का वह समूह है which makes dominant vowel sound, जिससे vowel की ध्वनि होती है. डोमिनेंट वर्ड क्यों यूज किया इन्होंने? क्यों? क्योंकि डोमिनेंट वर्ड का मतलब होता है कि साउंड जो है वो वॉवेल का हो, ये इंपॉर्टेंट है. और वो किस अल्फाबेट से वॉवेल होता है? जे कॉन्सोनेंट से भी वॉवेल का साउंड निकले तो वो भी वॉवेल साउंड कहलाएगा, और वॉवेल से निकलता है तो वो भी वॉवेल साउंड कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स इन विच द वर्ड इज ब्रोकन फॉर प्रोनाउंसिएशन. यानी किसी भी शब्द के टुकड़े करके हम अलग अलग टुकड़े के लिए अलग अलग एनर्जी यूज करते हैं, उसको बोलने के लिए, उसको उच्चारण करने के लिए, उसको हम सिलेबल कहते हैं. यानी यूं समझे कि अक्षरों का शब्द, किसी भी शब्द में अक्षरों का ऐसा समूह जो वॉवेल साउंड करता हो, और किसी भी शब्द को उसके अलग अलग शब्दों के भाग को बोलने के लिए जो पार्ट्स हम यूज करते हैं उसको बीट भी बोल सकते हैं, उसको सिलेबल भी बोल सकते हैं. सिलेबल. देखिए दिस इज अ लैंग्वेज, तो इसको आप अधिक से अधिक इंग्लिश का ही यूज करें तो बेहतर है. एग्जाम्पल हम लेते हैं. अब देखिए हम्बल. देखिए हम्बल हम बोलते हैं, हम्बल. ये देखो 2 सिलेबल्स हैं, तो 2 सिलेबल्स में जो एनर्जी लगेगी, जो बोलने की जो टाइम लगेगा, एक में कम और एक में ज्यादा लगेगा. इसकी वजह से ये डिफाइन होता है अलग अलग. हम्बल. Hum takes more energy, more time, more louder in comparison of the just beside word. Humble. 2 syllables, because we sound humble as hum and bul. Hum has U vowel sound. Hum. H M के बीच में U साउंड है, एक वॉवेल है, इसकी वजह इसको हम क्या बोलेंगे? 1 सिलेबल. HUM. और ये U का जो साउंड निकलता है उसको छोटा आ हिंदी में समझे या इंग्लिश में ए समझे. हम बोल. और जो ई है ये भी असल में जो है क्या निकलता है? साउंड निकलता है. तो इसको हम बोल, यानी एक वर्ड ये टुकड़े हो जाते हैं और एक ये हम बोल. अब इसमें देखिए मंकी. यानी पहले मंकी में आप बोलने का तरीका ये होता है जैसे मंकी. मौन यानी मन अलग हो गया और की ज्यादा टाइम लेता है. मंकी. तो मौन अलग है, किसमें एक वॉवेल अल्फाबेट है, एक वॉवेल का अल्फाबेट है. इसमें की में एक ई है,
तो देखिए एक वर्ड, ये एक वॉवेल की वजह से मंडे जो है एक साउंड दे रहा मॉन, और ई की वजह से ये दूसरा साउंड दे रहा की, मॉन्की। तो ये दो अलग अलग एक शब्द यानी मंकी एक वर्ड हो गया जिसके दो पार्ट हो गए, मन अलग की अलग। और ये अलग अलग कैसे हो गए? क्योंकि इनकी एनर्जी भी अलग अलग है। मंडे बोलने का जो टाइम है वो कम लगता है और की बोलने का टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए इसकी वजह से ये ब्रेक हो गए दो टुकड़े में। और हर टुकड़े को हम अलग अलग साउंड दे करके, अलग अलग अप एंड डाउन दे करके जो एनर्जी देते हैं उसकी वजह से अलग हो जाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? सिलेबल। यानी किसी भी वर्ड के जो टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं, हर टुकड़े को हम सिलेबल बोलते हैं। तो मन एक अलग सिलेबल है, की अलग है, तो ये 2 सिलेबल हो गया। अब ये देखिए ड्यूरेशन, 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 ड्यूरेशन। देखिए इसमें 3 वोवेल्स हैं, 3 सिलेबल्स हैं। ड्यूरेशन, ड्यू अलग है, रे अलग है, शन अलग है। ड्यूरेशन 3 syllables. Enjoy, enjoy yourself. For example, just we speak, enjoy the atmosphere, enjoy the gurgling of sound of water of river. Season, season, season. Sea takes more time than sun. Season, 2 syllables. So how can we classify the words into 2 or more than 2 parts? Each part is called syllable. How can we, what are the base? How can we divide the words in 2 or more than 2 parts? Each part is called syllable because of sound, because of lowness and loudness of the sound, and because of time taking, pitch, throw. ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जितने किसी वर्ड के एक भाग को बोलने में ज्यादा टाइम लगता है, एक में कम लगता है। इसकी वजह से वो शब्द 2 या 2 से अधिक टुकड़े हो जाता है, इसलिए हम उसको हर टुकड़े को सिलेबल बोलते हैं, यानी शब्द खंड। ठीक है। अच्छा, इन इंडिया so many persons speak English, correct English, but sometimes lack of correct pronunciation. And if anyone tries, then others makes laugh about that person. It's not good habit. Let's proceed. How to count syllable. अब ये प्रॉब्लम आती है कि भाई कैसे पता चलेगा हम सिलेबल कैसे भी काउंट करें, किस टाइप से काउंट करते हैं हम सिलेबल, ताकि हम उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें, उसका करेक्ट बोलें। नंबर ऑफ सिलेबल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वॉवेल साउंड्स इन अ वर्ड। ये रूल तो लिखा है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नंबर ऑफ सिलेबल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वॉवेल साउंड्स। देखिए वॉवेल साउंड्स लिखा है, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें रटना है, कोई चीज सीखनी भी है तो हर चीज सीखने का तरीका होता है। ध्यान दें आप। वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, ध्यान दीजिए। वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, ये वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड मीन्स वॉवेल, देखिए सॉरी, ये जो है वॉवेल, वॉवेल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। आप लोग जानते होंगे कि वॉवेल को साउंड बोलने के लिए या प्रोनाउंस करने के लिए हमें किसी दूसरे अल्फाबेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये एक ही अपनी ही हेल्प से बोले जाते हैं। वॉवेल्स can be pronounced by itself. They do not take any help of any other alphabets, so they are called vowels. तो A, E, I, O, U ये vowels हैं, लेकिन यहां पर लिखा है vowel sound होने चाहिए। तो इसमें क्या चीज छिपी हुई है कि साउंड अगर वो जो
कंसोनेंट भी अगर वॉवेल साउंड दे रहा है तो उसको हम वॉवेल साउंड कहेंगे और उसके ऊपर सिलेबल जो है हम उसको डिफरेंट करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। ये नहीं है कि वॉवेल की वजह से, वॉवेल साउंड की वजह से। अगर कोई कंसोनेंट वॉवेल साउंड के अकॉर्डिंग बोला जाता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था वाई, तो वाई को हमेशा उसको वॉवेल साउंड निकलता है, इसलिए हम वाई को इंग्लिश कंसोनेंट ना मान के हम इसको यूं समझ लें कि ये वॉवेल है, ऐसा यूज करने के लिए है। ठीक है, तो अब आपको लगता है समझ में आ गया होगा हाउ टू काउंट सिलेबल। अब आप देखिए कितने बढ़िया बढ़िया रूल्स हैं इसमें कि आपको मजा आ जाएगा। और मैं भी मजे लेने के लिए ही पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है, मजबूरी नहीं है मुझको। एक्चुअली आई एम मैथ्स टीचर, बट ड्यू टू डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड lovers of English literature, I am trying to make this video for you all. How to count syllable? First rule क्या है? Check number of vowels in a word. किसी भी वर्ड में कितने वॉवेल होते हैं उसको पहले आप ज्ञात कर लो, चेक कर लो। अब पहला नंबर। दूसरा क्या करे? टुगेदर। अब आप देखिए अब ये रूल चालू हो गया, चेक नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ वर्ड। पहले क्या करना है कि किसी भी वर्ड में अगर वॉवेल्स हैं तो किसी वर्ड में कितने वॉवेल्स हैं उनको हमें देखना है। सेकंड रूल में गया टुगेदर। टुगेदर मीन साथ साथ। देखिए चेक इफ टू वॉवेल्स आर टुगेदर। अगर कभी भी दो वॉवेल साथ में हो देन कंसीडर वन वॉवेल साउंड फॉर टू वॉवेल्स। तो ये अब देखो क्या कह रहा है, ऐसा माना जाता है कि दोनों वॉवेल का जो साउंड है ना वन वॉवेल साउंड, यानी दोनों वॉवेल का जो साउंड निकलेगा वो उसका साउंड वन वॉवेल साउंड होगा। टू वॉवेल साउंड मिल करके एक वॉवेल साउंड निकालेंगे। देखिए जैसे ड्रीम, ड्रीम में ई ए, यहां पर जो ई ए है देखिए ये ई ए, ये ड्रीम, तो यहां इसका जो वर्ड है वो इसका ई निकलता है ना, ये जो है ये ई निकलेगा, इसका समझाने के लिए थोड़ा ई निकलेगा ये ड्रीम। तो ई और ए दो वॉवेल साउंड मिल करके एक वॉवेल साउंड ई निकालते हैं। ई को अगर हम हिंदी इंग्लिश में साउंड करें तो यही है, तो इसलिए हिंदी में बताना पड़ रहा है ना। तो देखिए ई और ए, अ ग्रुप ऑफ वॉवेल साउंड मेक्स वन साउंड ई। तो ये देखिए साथ में डाई, डाई, डाई में आई ई, एक ही वॉवेल साउंड निकलता है, क्या ई का ही निकलता है, ध्यान दीजिए। क्राइज, इसमें आई ई एक ही वॉवेल निकलता है, ट्राई, ऐसा तो बात लगाते हैं आई। ईयर, अबाउट, ये वॉवेल साउंड, ये वॉवेल साउंड, इनका एक ही वॉवेल साउंड है। बोट, ओ, आप देख लो ओ है ये। अबाउट, आउट, अबाउट, आओ, एक वॉवेल निकलेगा, आओ, अबाउट, बॉट, ओ ए टी। Similarly, check if two vowels are together, then consider one vowel sound for two vowels. This is the rule for all English words which are written in dictionary or in your book. If two or more than two vowels are together, then we always consider or suppose that the group of vowels always make one vowel sound. It is the rule. And the third rule, E at the end silent. E at the end silent. If the word ending in E, then E will be silent. अगर कोई भी वर्ड E से एंड होता है या उसका जो समाप्ति है उसके एंड में E आता है तो उसको हम साइलेंट मानते हैं, उसको में कोई वॉवेल या कॉन्सोनेंट का साउंड हम नहीं मानते, है ना। तो उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। मतलब ई जो साउंड है, ई जो वॉवेल है, ये असल में साउंड में आना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। फाइल,
tile, inside, please, tame, name, decide में जो लास्ट में वर्ड है फाइल, देखिए ये गलत बोला हमने, फाइल, टाइल, इनसाइड, साइड, ड बोलते ही ई असल में हमारे मुंह से अ नहीं निकलना चाहिए, असल में होता तो यही है रूल, क्योंकि स्वर की गूंज भी खत्म हो जानी चाहिए एंड में। स्वर की जो गूंज है, जो इको है साउंड का, इनसाइड ड ड ड में आ रहा, ये नहीं होना चाहिए, इनसाइड ड में आ नहीं निकलना चाहिए, तो स्वर की गूंज यानी इको नहीं होना चाहिए। इनसाइड, प्लीज, टेम, नेम, डिसाइड एटसेट्रा। नेक्स्ट वन, I will make you learn and make you understand. Definitely, I will try my best to explain each and every point related to literature, but make your patience. Count the number of vowel sounds. Fourth, if one vowel sound is in a word, then it is monosyllabic. अब देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, count the number of vowel sounds. अब इसमें रूल क्या कह रहा है, इफ वन वॉवल साउंड इन अ वर्ड, अगर किसी भी वर्ड में एक ही वॉवल साउंड निकलता है तो वो मोनो मीन्स होता है वन, और सिलेबल मीन्स होता है शब्द खंड, यानी एक शब्द खंड होगा, यानी एक शब्द का एक खंड होगा, वो मोनो मीन्स वन। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स दो, ट्राई मीन्स तीन, टेट्रा मीन्स चार, पेंटा मीन्स पांच, हेक्सा मीन्स सात, ऑक्टा मीन्स 8, नॉनेन मीन्स 8, डेकन मीन्स 10, अनडेकन 11, डू डेकन 12, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें तो 8 तक ही चाहिए। काउंट द नंबर ऑफ वॉवल साउंड्स। देखिए डॉग, एक ही वॉवल साउंड है इसमें, देखिए इसमें डी ओ जी, ओ वॉवल साउंड, एक ही वॉवल है। अगर किसी भी एक वर्ड में एक ही साउंड है तो एक ही बीट आएगी। भाई आप डॉग को क्या बोलो, डॉग, ऐसे नहीं डॉग डॉग, ऐसे नहीं बोलोगे, डॉग, कैट, रैट, गैप, डाई, मैन, बेस्ट, स्टॉप, स्माइल, डांस, नेल। डांस अलग है, नेल अलग है। देखिए आप ध्यान दीजिए, इफ वन वॉवल साउंड इन अ वर्ड देन इट इज मोनोसिलेबिक। कह रहा अगर किसी भी एक वर्ड में एक ही वॉवल साउंड, एक वॉवल है, एक वॉवेल का साउंड होता है या एक ही वॉवेल है, तो उसको हम मोनोसिलेबिक या एक सिलेबल वाला बोलेंगे, और उसको एक ही बार में बोलना भी पड़ेगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। जैसे डॉग, कैट में देखिए डॉग में ओ एक क्या है वॉवेल, इसमें ओ है, देखिए इसमें ओ है, इसमें ए है, तो देखिए ये वो जो है वॉवेल साउंड निकालता, डॉग अ, कैट ऐ, कैट, रैट रैट, गैप ऐ, डाई, मैन ऐ, बेस्ट ए, स्टॉप अ, स्माइल आइल, ई साइलेंट है, डांस डांस में ए ई। अच्छा, if more than one vowel sound in a word, then it is multi-syllable. Multi means अनेक, multi means many, multi means many. many का मतलब ये नहीं कि सभी many होंगे, इसका मतलब अब एक से अधिक हो गया तो मोनो, डाई सिलेबिक, ट्राई सिलेबिक, टेट्रा सिलेबिक हो जाएगा many। ये मल्टी मीन्स होता है many। अगर एक साउंड से ज्यादा निकलता है तो वो मल्टी सिलेबल वाला होगा। जैसे अब देखिए यहां पर है कॉर्नर, देखिए कॉर्नर, कॉर्नर, यस्टरडे, ये 3 सिलेबल वाला है। देखिए हमारे पास अभी क्या था, डॉग, इसमें एक वो जो है, जो इंग्लिश वॉवेल वो है, वो साउंड कर रहा था, केवल एक ही साउंड दे रहा था, एक ही वॉवेल साउंड दे रहा था, तो ये मोनोसिलेबिक हो गया। अब ये 2 साउंड दे रहा है, कॉर न, तो इसमें छोटा आ है ई के लिए और ये ओ है, यानी
ये ओ बोलता है, यहां ओ है और यहां क्या है, अ है, छोटा अ, ऐसे कॉर्नर, कॉर्नर, ये टू सिलेबल है, यानी दो, इस शब्द के कॉर्नर के, इस शब्द के दो खंड हो गए। अब यस टुडे, यहां पर तर नहीं है, गलत लिखा है ये एस्टरडे, वैसे एस्टरडे जो होता है वो 3 सिलेबल है, सिलेबिक है। तो इस तरह से हम देखें हाउ टू ब्रेक वर्ड इनटू सिलेबल। अब इसका रूल देखिए, जो भी आज हो सकता है वो मैं करवाता हूं। हाउ टू ब्रेक वर्ड इनटू सिलेबल, यानी किसी भी वर्ड को हम सिलेबल में कैसे बदलते हैं, कैसे जानते हैं कि सिलेबल है, ये वाला टुकड़ा सिलेबल में माना जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये रूल दिया है। फर्स्ट नंबर, इफ डिवाइड और ब्रेक टू मिडिल कॉन्सोनेंट। अगर कभी किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं, देखिए, इफ टू कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन बिटवीन द वॉवेल्स, अगर कभी भी दो कॉन्सोनेंट, इफ टू कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन बिटवीन द वॉवेल्स, यानी वॉवेल्स के बीच में दो कॉन्सोनेंट आते हैं, अगर वॉवेल के बीच में दो कॉन्सोनेंट आते हैं, इसको जरा देखें, मतलब क्या हुआ, देखिए, देखिए यहां पर लिखा है सड, एस यू डी डी ई एन। अब आप देखिए, ये वॉवेल है, ध्यान दीजिए, ये वाला वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, और इसके बीच में दो कॉन्सोनेंट हैं, ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं। ये वॉवेल, वॉवेल नंबर 1, ये वॉवेल नंबर 2, और इसमें दो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट 1 और कॉन्सोनेंट 2। देखिए, अगर ये क्या रूल बताया जा रहा कि अगर किसी भी वर्ड में सडन, सडन में जो है इसमें दो वॉवेल के बीच में दो कॉन्सोनेंट आए, यानी ये जो दोनों कॉन्सोनेंट है ये दबे हुए इन दोनों वॉवेल से, या यूं समझे ये दोनों मित्र जो है इनको दबा करके पिचका रहे हैं, इनको यूं समझ सकते। तो सडन, डी डबल डी जो है दो कॉन्सोनेंट यू और ई दो वॉवेल के बीच में आए, तो इस जब वर्ड को हम टुकड़े करेंगे, जब इसका सिलेबल बनाएंगे, तो ये जो डी है यानी कॉन्सोनेंट है, इसके दो टुकड़े कर देंगे, यानी अलग अलग कॉन्सोनेंट कर देंगे। देखिए, एस यू डी, ठीक, और फिर हम लिखेंगे डी ई एन। देखिए, ये डी डबल जो है वो ब्रेक हो गया, सडन, 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 क्योंकि सड अलग होगा, डन अलग होगा, तो इसमें थोड़ा साउंड अलग होगा, इसका अलग होगा, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी होगी। तो ये रूल क्या कहता है कि किसी भी वर्ड में अगर दो वॉवेल के बीच में कॉन्सोनेंट हैं, दो कॉन्सोनेंट हैं, वॉवेल के बीच में दो कॉन्सोनेंट अगर आते हैं, तो जब भी कभी उस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, सिलेबल बनाएंगे, तो हमेशा उस कॉन्सोनेंट को ब्रेक करके ही बनाएंगे। तो सडन, 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 सडन। अब देखिए यहां पर भी है, ये पी डबल है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने हैपन, देखो ये पी को हमने यहां ब्रेक कर दिया, हैपन, हैपन, हैप। देखो, हैप पे ज्यादा वजन लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा लाउड होता है, और पेन पे हल्का लगता है, हैपन, इट हैपन विद। अब देखो, एलो, एल ओ, एल ओ, मैटर, 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 मैट अलग। ये देखो, टी डबल टी था, यहां ब्रेक हो गया, ट, मैटर, गैसकेट। देखिए, एस के, इसमें दो वॉवेल है, देखिए वॉवेल के बीच में तो बंद है, एस के दो है, तो इसको अलग कर दिया, गैसकेट, गैस्ट, पॉट, पॉट, पॉट। अब ये देखिए, प्यूटर, कंप्यूटर,
तो ये जो है कंप्यूटर, देखिए वो ओ पी यू, ये गलत लिखा है, यहां पर कम अलग आएगा, फ्यूचर अलग आएगा, ठीक है। यहां पर दो कॉन्सोनेंट कम अलग आएगा और कम फिर पी से चालू होगा, यहां पी से गलत लिखा है, पी से चालू होगा इधर, ठीक है। तो अब आप समझ गए, इफ एनी वर्ड कंटेंट्स two consonants which are surrounded by two vowels, then whenever we break that word into syllables, then always break the consonant into two parts. Now, each part which becomes as a two syllables, and each syllables has the different types of the different energy. So, for example, we can speak like this: sudden, happen, low, matter, gasket, pot, computer. It's a way. How can we speak word? And the second rule, remember consonant exceptions. अब हमें वो exceptions भी जानने हैं, वो अपवाद भी होते हैं जो ये बीच में कभी आ जाए तो इनको ब्रेक नहीं करेंगे। मतलब किसी भी वर्ड में अगर CH, PH, TH, SH, WH आ जाए तो इनको हम ब्रेक नहीं करेंगे। यानी इफ एनी वर्ड कंटेन्स consonant, two consonants between two vowels, then always break that words into two syllables by breaking consonant. But here is a exception of that. We cannot separate those syllables, the word into syllables which has CH, PH, TH, SH, WH has consonant in them. तो वो हमेशा साथ में ही रहेंगे, उनको ब्रेक नहीं करेंगे। यानी अगर CH यानी H वाले जो एंड में होते हैं, CH, PH, TH, SH, WH, इनको हम ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे परचेज, एलिफेंट, मदर, फादर, फेदर, कैश, इसमें SH आया। देखिए परचेज में CH आया, परचेज को हम ब्रेक नहीं करेंगे। परचेज, एलिफेंट, मदर, फादर, फेदर, कैश। CH cannot break into C and H, and PH cannot break into P and H, etc. तो समझ में आ गया होगा। Divide before one middle consonant. If there is only one consonant in the middle, अगर मिडिल में केवल वन कॉन्सोनेंट है, then break before the consonant. ध्यान दीजिए, अगर किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट आया है, एक कॉन्सोनेंट, तो वो कॉन्सोनेंट को अगले वाले सिलेबल में यूज करेंगे, उसके पहले वॉवल से ब्रेक करेंगे। देन ब्रेक बिफोर द कॉन्सोनेंट, यानी वॉवल से ब्रेक करना शुरू कर देंगे। जैसे टुडे लिखा है तो डी जो है यहां पर, ध्यान दीजिए, एक वर्ड अपन को क्लियर करते हैं। ये जो टुडे है, TODAY, ये देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ये वन कॉन्सोनेंट है, वन कॉन्सोनेंट। तो हम जब इसको छोड़ करके इसके पहले से यानी वॉवल से चालू करेंगे, टू अलग और डे अलग, यानी डी के पहले से शुरू करेंगे ब्रेक करना, तो यानी टू अलग हो जाएगा और डे अलग हो जाएगा। टुडे ऐसे बोलेंगे, टुडे। देखिए यहां पर टू नाइट होता है तो टू से ब्रेक कर दिया हमने, टू नाइट। डेविल, डेविल, डे अलग, विल अलग, क्योंकि वी के पहले आया है। रिटर्न, अब वो समझ में तो आ रहा ना। देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी वर्ड में, अभी आपने क्या रूल पढ़ा था कि दो कॉन्सोनेंट अगर बीच में आते हैं और वो जो है वॉवेल से घिरे हुए हैं, तो कॉन्सोनेंट को ब्रेक करके हम दो या दो से अधिक सिलेबल बना लेते हैं। लेकिन अगर एक ही वॉवेल एक ही कॉन्सोनेंट आता है तो उसके पहले, उसको मतलब जो केवल एक ही कॉन्सोनेंट वाले को हम क्या करेंगे, उसके कॉन्सोनेंट को छोड़ करके उसके पहले से उसको टुकड़े करेंगे, कॉन्सोनेंट को अगले वाले सिलेबल में रहने देंगे। देख लीजिए आप यहां पर, टू डे, टुडे, टुनाइट,
डेविल, रिटर्न। तो ये हम साउंड अलग अलग क्यों है? टू सिलेबिक है, टू सिलेबिक साउंड है ये, क्योंकि टू अलग है, डे अलग है, टू अलग है, नाइट अलग है, डी अलग है, विल अलग है, री अलग है, टर्न अलग है। तो टुडे, टुनाइट, डेविल, रिटर्न ऐसे बोलते हैं। तो इसमें चूंकि टू सिलेबिक वर्ड है तो इसको हम सिलेबल अलग अलग कैसे करेंगे? तो अगर एक ही कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले से हम वर्ड को ब्रेक करेंगे। थैंक्स, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट। फोर्थ रूल, LE holds the alphabet placed before LE. Alphabet LE forms one syllable. So divide or break before the alphabets when LE is there in a word. देखिए क्या कह रही है कि अल्फाबेट forms one syllable. LE, alphabet and LE forms one syllable. So divide or break before the alphabet when LE is there in a word. कह रहा है कि ये जो है humble, यहां पर LE एक तो हो गया, हम बीच में देखते हैं। अब आप देखिए इसमें लास्ट में जो है, ये लास्ट में LE है, तो यहां पर क्या है? LE साइलेंट की तरह काम करता है। अल्फाबेट एंड LE फॉर्म्स वन सिलेबिक, यानी जो LE के साथ जो अल्फाबेट जुड़ा होगा, पहली बात तो हम देखो हम्बल है तो डबल MHM, और भी देखिए इसको मैं एक लिख के दिखाता हूं इधर, यहां पर थोड़ा रूल लैंग्वेज सही नहीं लिख रही। हम बल PLE, ध्यान दीजिए, सॉरी हम्बल B, हम्बल। तो देखिए इसमें दो वॉवेल, दो कॉन्सोनेंट है MB। अब ये MB जो दो कॉन्सोनेंट है, अभी क्या रूल पढ़ा था हमने कि जब कभी दो वॉवेल हो, दो कॉन्सोनेंट हो, घिरे हो, तो हम कॉन्सोनेंट को तोड़ते हैं। तो हम ये हो गया और बल अलग हो गया, हम्ब। तो ये जो LE के साथ जब भी कोई सिलेबल बनाएगा, मतलब कहने का कि जब हम किसी वर्ड को ब्रेक करेंगे तो LE के साथ वाला जो सिलेबल होगा उसमें LE की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो साउंड नहीं करेगा। उससे एक सिलेबल तो बन जाएगा लेकिन वो साउंड नहीं करेगा। हम बल, देखिए हम बल BLE, ये BLE के साथ वाला जो साउंड है LE का साउंड आ रहा, तो ये LE हमेशा एक साउंड बनाएगा, LE हमेशा एक साउंड बनाएगा, हम्बल, ट्रबल। यदि देखिए LE के साथ B आकर के एक सिलेबल बना रहा है, तो यानी कहने का मतलब LE के साथ जो वर्ड जुड़ेंगे वो एक सिलेबल बनाएंगे, LE के साथ वाले, जैसे बल, बल, टल, हैंडल। देखिए हम्बल, ट्रबल, गैम्बल, सेटल, हैंडल, लिटिल, ब्रिटल, ऐसे। अब यहां पर एक है, चलो खैर अब देखते हैं। और फिफ्थ रूल है, सेपरेट टू स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स। सेपरेट मीन्स अलग कीजिए, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। टू स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स, सेपरेट टू स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स। देखिए अगर कभी कोई वर्ड ऐसे बने हुए हैं जिसमें दो अलग अलग वर्ड की मीनिंग अलग अलग है, तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, उनको एक सिलेबल में लिख सकते हैं। जैसे कीवर्ड, दिस इज द कीवर्ड, तो की मीनिंग अलग है, की मीन्स होता है चाबी, वर्ड अलग होता है, इसको हम अलग भी बोल सकते हैं, इसको अलग और इसको अलग बोल सकते हैं। वी कैन राइट द पार्ट्स ऑफ द वर्ड कीवर्ड सेपरेटली, राइट। कीबोर्ड, देखिए सेपरेट टू स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कोई वर्ड में अगर दो अलग अलग पार्ट ऐसे हैं जिनकी मीनिंग निकलती है तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। इफ अ वर्ड हैज टू और मोर देन टू वर्ड्स
parts which has its own meaning separately, then we can change, then we can separate those group of words. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, कीबोर्ड अलग होता है, कीबोर्ड देखो हमने अलग किया हुआ है, यहां पर अलग किया हुआ है, कीबोर्ड, कीबोर्ड साथ में बोलते हैं तो की अलग कर सकते हैं और बोर्ड अलग कर सकते हैं। स्नोमैन, ये एक साथ एक वर्ड है, तो स्नो की अलग मीनिंग होती है, मैन की अलग होती है, तो स्नो अलग कर सकते हैं, मैन अलग कर सकते हैं, स्नो और मैन अलग। मून लाइट, तो ये मून अलग कर सकते हैं क्योंकि सेपरेट मीनिंग इसकी होती है चांद, चंद्रमा, और लाइट मीन प्रकाश। मिल्क मैन, तो मिल्क मैन दूध वाला होता है, लेकिन मिल्क की मीनिंग अलग हो सकती है, दूध, और मैन के मतलब आदमी, तो ये इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रेफिक्स एंड सफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड हम किसी वर्ड का अर्थ अलग करने के लिए उसके पहले हम जो लगाते हैं उसको हम प्रेफिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रिपेयर, हमारे पास जो वर्ड होता है, जैसे यहां पर अनप्रिपेयर लिखा है तो प्रिपेयर पी गायब है, यहां गलत हो गया है। तो देखो अब अवेयर, अवेयर के पहले हमने अन लगा दिया तो ये प्रेफिक्स है। तो ये कह रहा है कि प्रेफिक्स या सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड के बाद में हम कोई जब वर्ड लगाते हैं तो उसको हम सेपरेट, उसको क्या बोलेंगे, सफिक्स। और प्रेफिक्स है, प्री मीन्स पहले, फिक्स जोड़ते हैं, पहले जो जोड़ते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स बाद में जो जोड़ते हैं सफिक्स। तो अनअवेयर, देखो अन अलग है, अवेयर अलग है, तो ये अनअवेयर, तो ये हमने इनको अलग अलग सेपरेट सिलेबल हम बोल सकते हैं। जैसे देखो ये पूरा बोला जाता है अनअवेयर, तो इसको असल में अनअवेयर लिखा है, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, अनअवेयर, अनअवेयर, अनअवेयर। तो अन अलग, ये एक पूरा साउंड दे रहा है, एक सिलेबल है ये पूरा, वन सिलेबल, और ये एक सिलेबल है वन, तो ये टू सिलेबल वर्ड हो गए। देखो नोन, अन अलग है, तो अन को हम एक सिलेबल मानेंगे, अननोन, अननोन, अनवेल, अनसीन। देखिए ये सब प्रीफिक्सेस हैं। प्रीपेयर्ड, प्रीपेड, ये क्या है, प्रीफिक्स है। रीडायल, स्पेलिंग गलत लिखिए, रीडायल, रीराइट, रीवाइंड, तो ये री जो है ये वन सिलेबल अलग होता है, इसकी मीनिंग अलग है, वन सिलेबल, इसको अलग लिखेंगे। सफिक्स जो बाद में लगाते हैं उसको भी हम अलग सिलेबल मान लेंगे, पूरा एक सिलेबल मानते हैं उसको। होपलेस, होपलेस, देखिए लेस यहां पर क्या है, सफिक्स है। एमलेस, सेंसलेस, केयरफुल, शेमफुल, वॉचफुल, हार्मफुल, फार्मर, चॉपर, ड्रीमर, क्लीनर, टीचर, ये जो अर हमने लगाया है, ये वर्ड अर, ई आर, अर, देखिए इसमें फार्मर को असल में फार्मर लोग बोलते हैं, अधिकतर सभी नहीं बोलते हैं लेकिन फार्मर बोलते हैं, तो उसमें गलत होता है। अगर वास्तव में एक्यूरेट बोला जाएगा तो उसको फार्म अलग होगा, अर अलग होगा, तो फार्म ज्यादा तेज साउंड निकालेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा जो तेज साउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और जो कम साउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, तभी समझ में आएगा। तो देखिए फार्म, इसको हम फार्मर को क्या बोलेंगे, फार्मर। चॉपर को क्या बोलेंगे, चॉपर। ड्रीमर, क्लीनर, टीचर, एक्सेट्रा, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब फुट की बात हम बाद में करेंगे, पहले फुट देखते होता क्या है। अब आप देखिए यहां पर आपको काफी चीजें आपने सीख ली सिलेबल के विषय में, और आपको शॉर्टकट में बता दूं कि syllables are group of words which has separate sound vowels. It does not depends on the vowel alphabets but depends on the vowel sounds. Whenever we speak, when make a sound, then that must have one vowel at least. Foot.
फुट असल में सिंगुलर नंबर होता है और फीट प्लूरल नंबर होता है। फुट का मतलब होता है चरण। चरण का मतलब पैर नहीं, चरण का मतलब पैर भी होता है, लेकिन चरण का मतलब, उसको हिंदी कविता में फुट का मतलब चरण है, मीटर का मतलब छंद है, कपलेट का मतलब दोहा है, ऐसे बोलते हैं। अभी मैं सबको धीरे धीरे बताऊंगा। फुट यूजुअली कंटेन्स वन स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड एटलीस्ट वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अब देखिए फुट किसको कहते हैं, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, आपको मजा आ जाएगा। He will float in the ocean of the enjoyment if you understand this wholly by making your attention towards the depth of this subject. Foot usually contains one stressed. Stressed means ज्यादा देर तक बोला हुआ, which take more time, देर तक बोला हुआ, लंबा बोला हुआ, हाई पिच साउंड, हाई पिच साउंड, स्ट्रेस्ड, इसको लिख देते हैं, टेक्स मोर टाइम, देन अदर, एडजेसेंट, एडजेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एडजेसेंट, मतलब what we listen by our ear, actually that is not the right criteria कि this is the stressed or unstressed. The word foot usually contains one stressed, यानी foot किसको कहते हैं, एक ऐसा शब्द जिसमें कम से कम एक ऐसा टुकड़ा हो, एक शब्द में एक से अधिक जो सिलेबल होते हैं, तो उन सिलेबल में कम से कम एक सिलेबल ऐसा हो जो स्ट्रेस्ड, यानी ज्यादा टाइम तक बोला जाए और ऊंचा बोला जाए, हाई पिच पे बोला जाए, ज्यादा टाइम लगे, और कम से कम उनके साथ एक अनस्ट्रेस्ड यानी कम टाइम लगे, कम से कम एक, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो यहां पर एटलीस्ट मींस कम से कम, मतलब 1 और 2 और 3 एंड सो ऑन, लेकिन उसमें कम क्या होना चाहिए, वन स्ट्रेस्ड सिलेबल होना चाहिए। स्ट्रेस्ड मींस जो तेजी से बोला जाए, जिसमें ज्यादा टाइम लगे, टेक्स मोर टाइम देन अदर एडजेसेंट वर्ड्स, सिलेबल, अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, अल्फाबेट्स मतलब जो हमारे कान जो डिटेक्ट करते हैं कि ये तेजी से साउंड बोला, ये कम, वो बात नहीं होती। किसी भी वर्ड में उसके बगल वाले में जितना टाइम हम लगाते हैं उसके, और जितना हम जो वर्ड बोल रहे हैं उससे कम लगाते हैं या ज्यादा लगाते हैं, उसके अगल बगल के शब्दों या सिलेबल के ऊपर डिपेंड करता है साउंड। ये नहीं कि हम कभी कोई वर्ड कोई बोल रहा तेजी से तो हम हमारे कान जो सुनते हैं कि भाई ये तो बहुत देर तक बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। Always compare the sound, high pitch or low pitch sound with the adjacent alphabets, adjacent vowels, alphabets, group of alphabets, syllable you can say. Foot usually contains one stressed, means एक stressed को हम क्या बोलते हैं, high pitch sound या take more time or taking more energy to sound, make sound, and अनस्ट्रेस्ड मीन्स हल्का बोला हुआ, लो पिच, लो पिच या टेक लेस टाइम, टेक्स लेस टाइम, लेस टाइम। यहां पर ध्यान दीजिए, इन कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ एडजेसेंट सिलेबल। फुट, देखिए फुट में क्या लिखा है, वन स्ट्रेस्ड सिलेबल, एटलीस्ट वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, उसको हम एक फुट बोल देंगे। एक फुट से ज्यादा जब होगा तो फीट बोलेंगे फिर,
वैसे इंग्लिश में रूल यही होता है। तो स्ट्रेस्ड सिलेबल को हम बार बार स्ट्रेस्ड बोले तो ये जरूरी नहीं है, तो हम स्ट्रेट सिलेबल का एक सिंबल यूज करते हैं। ये जो लाइन है स्लैग्ड लाइन या स्लैंट लाइन, स्लैंट मतलब तिरछी, स्लैंट लाइन, इसको हम इक्टस बोलते हैं, इक्टस, स्लैंट लाइन, इक्टस। और ये जो मून टाइप बना हुआ है, मून टाइप, नॉट मून, मून टाइप जो बना हुआ है वो ब्रीव बोलते हैं। यानी स्ट्रेस्ड सिलेबल के लिए ये साउंड, कहीं अगर ये साइन लगा होता है तो उसको हम स्ट्रेस्ड सिलेबल समझ सकते हैं। और वहां पर यानी कि इक्टस, whenever we see this sign, then that is called also ictus, and the unstressed sound for moon, actually that is called breve is used. अब आप देखिए यहां पर आपको बड़ा मजा आएगा, it's a very enjoyable subject. Foot is the singular number and feet is plural number. तो अब देखिए FATHER, फादर जो है, अभी देखिए ये फादर, फॉर यू कैन यूज इक्टस, हियर वी कैन यूज इक्टस, मीन्स दिस साउंड, ये फादर, ये मून, ये मून, फादर हैज टू सिलेबल्स F and the, where F is stressed means खींचा हुआ, तेजी, ज्यादा टाइम लिया हुआ, तो इसको फादर, फादर, फादर. This is the way how can we speak the word father. F-A, father, you go. Father has two syllables, for and the, where F is stressed and the is unstressed. Father, here is three syllabic words. Amazing is called amazing. Has three syllables where A is unstressed, M A is stressed, and zing is unstressed. Amazing, 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 amazing. There are three syllabic word amazing. Is it clear? And amazing, how can we use this? Stress. देखिए, this sound, this sign you can use this sound and this sound. Amazing, amazing. This is ictus. This is ictus. This is breve. Breve is moon-like, and ictus is slacked line or slant line. So whenever we use whenever we classify a word into syllables, then we have to use the word, the group of alphabets which takes more time, that is called stressed syllable. Stressed syllable, and that stress is expressed by the sign slant line or ictus. A literary word है ictus. And father, 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 you understand? Amazing, amazing, amazing. This is the way. That's all. So this is the way how can we differentiate foot. अब foot के विषय में भी हम थोड़ा सा समझाएंगे, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है. This is very enjoyable subject, and I am also taking enjoyment and teaching you. Foot, you understand? Perhaps you better understand at this point. What is foot? When you take a word,
when you take a word and change into syllable, so that word must have one stressed and one unstressed, at least one stressed, one or more than one unstressed. देन स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड को मिला करके 1 फुट बनता है। लेकिन अगर यही फुट किसी भी पोएट्री की लाइन में, अगर ये फुट जो एक देखिए, अब आप समझिए, किसी भी वर्ड में एक स्ट्रेस्ड सिलेबस है और एक अनस्ट्रेस्ड है, तो ये 1 फुट बन गया। और इसी तरह से अगर 5 किसी लाइन में 5 ऐसे टुकड़े हैं, 5 सिलेबल इसी टाइप के हैं, एक स्ट्रेस्ड दूसरा अनस्ट्रेस्ड, या एक अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड, ऐसे अगर 5 पेयर हैं तो उनको हम पेंटा भी बोल सकते हैं, पेंटा बोलेंगे, तो वो भी बाद में समझाएंगे। तो फुट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सिलेबल में उसका एक टुकड़ा ऐसा हो जिसमें कि स्ट्रेट सिलेबल हो, जिसमें हम तेजी से बोले, जिसमें हाई पिच में बोले, और कम से कम एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो, तो उसको हम 1 फुट बोल देते हैं। ऐसे 4-5 फुट 10 फुट भी हो सकते हैं। अभी तक तो इसे 5 फुट से ज्यादा नहीं होते, क्योंकि आयम्बिक पेंटामीटर है और बहुत सारे हैं जिसमें ज्यादा वो नहीं है। तो ये समझ गए, इंट्रोडक्टरी है ये, थोड़ा समझे। अब हम आयम्बिक पेंटामीटर क्या देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। मीटर के विषय में पहले देख लेते हैं। देखिए, अब थोड़ा पहले मीटर को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। अगर देखो फीट, मोनोमीटर अगर लिखा, मोनो मीन्स होता है 1। देखो आप मीटर को ये समझो फीट है, ये मोनो मतलब ये समझिए आप, मोनो मीन्स होता है 1, यानी इसका मतलब ये मोनो जो है इसका मतलब 1, ये सॉरी यहां तक, ये इसका मतलब होता है 1, इसको हम 1 भी बोल सकते हैं, 1। और मीटर मीन्स होता है मेजरमेंट, मोनोमीटर मीन्स होता है 1 मेजरमेंट। तो मोनो असल में यहां पर छुपा हुआ है, और मीटर का मतलब होता है फुट। तो यहां पर मोनो यानी 1 फीट, 1 फुट समझ सकते हो आप, 1 फुट। अगर 1 फुट है यानी मोनो मीन्स 1 फुट। अगर किसी भी लाइन 1 फुट, और मीटर का मतलब मेजरमेंट, आप समझ सकते हैं, वैसे इसका मतलब होता है छंद। तो अगर 1 फुट है तो मोनो बोलते हैं। अभी हमने क्या बताया कि स्ट्रेस्ड यानी ये लाइन और ये अगर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, मोनो हो गया, यानी 1 फीट हुआ ना, ये एक स्ट्रेस्ड सिलेबल और एक अनस्ट्रेस्ड, तो इससे कम से कम 1 फीट तो बन ही गया, 1 फुट तो बन गया ना, तो इसको मोनोमीटर बोलेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से 2 आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर एक ऐसे, फिर इसके बाद एक लिया हमने ऐसे, ये 2 हो गए, 1 2, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाईमीटर। डाई मीन्स 2, इसका डाई मीन्स होता है 2। ट्राई होगा, ये टेट्रा यहां पर हो गया, डाई ट्राई होता है, ट्राई यहां से गायब हो गया, ट्राई मीटर। ट्राई मीन्स 3। अगर इसी तरह से 3 हो जाए, जैसे 1 2 3, ये 3 हो गए, तो इसको ट्राई मीटर बोलेंगे। टेट्रा मीन्स होता है 4, यानी FOUR 4, टेट्रामीटर। पेंटा मीन्स होता है 5। अगर किसी भी पोएट्री में या किसी भी लाइन में अगर मान लीजिए 5 फीट हो,
5 फीट का मतलब जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 फीट है, तो इसको हम पेंटामीटर कहते हैं। अब आप एक चीज और ध्यान रखिए कि पेंटामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली पोएट्री रिटन इन पेंटामीटर। 154 sonnets of Shakespeare has written 154 sonnets, which is maximum written in iambic pentameter. I will tell you, I will explain you what is iamb, talkie, dactyl, etc. But at this time, I would like to emphasize pentameter. Penta means 5, meter means measurement, you can say, but actually this is for only feet. Penta means 5 feet. Hexameter 6 feet. Hexa means 6 होता है. Hepta 7 होता है. Octa 8 होता है. ट्राई यहां देखिए लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं. ऑक्टामीटर भी होता है, फिर ऑक्टानोनियन भी हो सकता है, डेकन भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वी कैन यूज ओनली ऑक्टामीटर. 8 फीट तक हम यूज करते हैं. अब इसके बाद हम देखते हैं आपको क्या बताना चाहते हैं. देखिए थोड़ा सा परिचित करवाएंगे, फिर इसके बाद आपको समझाएंगे. ठीक है, मैं ये सीरीज जो है कम से कम per week I will make a video for this subject, and the 6 or 7 days will for only mathematics, because mathematics is my hobby. I like mathematics. And in second position we like literature, chemistry, physics also. Oh yes, I will explain you. This is the first step towards the literature. I would like to say iambic. अब आप देखिए, अनस्ट्रेट सिलेबल इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेट सिलेबल. अगर जो फुट होता है, फुट का आपने क्या समझा, कोई भी वर्ड में अगर एक अनस्ट्रेस्ड, देखिए थोड़ा सा लिख के तब समझा देते हैं आपको, तो कंफ्यूजन हो जाता कभी कभी. आप 2-3 बार इस वीडियो को देखें. जैसे मान लीजिए अभी हमने फादर देखा, फादर, मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं. देखिए फा, ये हाई पिच साउंड है, स्ट्रेस्ड सिलेबल है, स्ट्रेस्ड, और ये जो साउंड है ये अनस्ट्रेस्ड है. यानी ये हाई पिच साउंड है. takes more time, in comparison of thar, in comparison of THER. देखिए मैंने यहां पर जो लिखा वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारे जो कान सुनते हैं तेज, ऊंचा, तेज और हल्का, उससे मतलब नहीं होता. ये इसके दर के साथ में दर हल्का बोलते हैं, और फादर इससे तेज, कितना तेज बोलते हैं या इससे कम तेज बोलते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है फा. तो देखिए यहां पर फा स्ट्रेस्ड हाई पिच साउंड, ये लो पिच साउंड है, लो पिच साउंड. लो पिच किसका कंपैरिजन में, स्ट्रेस्ड वाले के. तो देखिए फा, इस पे कौन सा साइन लगाएंगे, ये, इसको स्लैंट लाइन, या इसको हम यूं कह सकते हैं, ये देखिए ये साइन लग गया. और ये क्या लगाएंगे, ये तो क्या हो गया, इक्टस, ये क्या है, ब्रीव. तो ये 1 इक्टस और 1 ब्रीव, यानी ये जो फादर है ये एक वर्ड है. अब आप देखिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एक वर्ड हो गया. ठीक है, अब इस वर्ड के हमने 2 टुकड़े किए. क्यों, फादर, क्योंकि फा अलग और दर अलग. तो ये 1 सिलेबल, 1 सिलेबल, और ये भी 1 सिलेबल.
अब ये वन सिलेबल जो है हाई पिच वाला है, तो इसको हम इक्टस का यूज करते हैं, ये लाइन, और ये लो पिच साउंड है तो इसको ब्रीव का यूज करते हैं। अगर एक इक्टस और एक ब्रीव यानी एक हाई पिच साउंड और एक लो पिच साउंड, या जिसको हम स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, ये जो पेयर है, एक पेयर को हम एक फुट बोल देंगे। यानी वन वर्ड के हमने दो टुकड़े किए, हर टुकड़ा एक सिलेबल कहलाएगा, क्योंकि इसका फॉर एक अलग सिलेबल है, दर एक अलग सिलेबल है। तो अब इन दो सिलेबल को मिल करके ये एक फिट बन गया। भाई देखिए, फुट किसको कहते हैं? फुट ये पूरा मिला के होगा, तो ये एक बीट हो गया। आप इसको बीट भी बोल सकते हैं, अभी अब सब शुरू में बताया था, या इसको सिलेबल बोल सकते हैं। तो दो सिलेबल का एक फीट हुआ, ये फुट मतलब दो सिलेबल का एक फुट हुआ। ये दो सिलेबल, एक वर्ड दो सिलेबल टुकड़, दो सिलेबल बदल गया, और ये दो सिलेबल का एक फुट हो गया। और ऐसे फुट को हम, जिसमें पहले हाई पिच साउंड हो और बाद में लो पिच साउंड हो, उसको हम आयम्बिक बोलते हैं। आयम्बिक, आयम्ब मीन्स होता है, आयम का मतलब आप समझे, ये ग्रीक वर्ड का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड, इसका ये आयम्ब, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू। फुट, जिसमें कि आयम्ब का मतलब इसमें टू, पहले अनस्ट्रेस्ड और दूसरे में स्ट्रेस्ड, ये दो अगर साथ में चले तो इसको हम आयम्बिक। अब फुट, ये आयम्बिक फुट कहलाएगा। ये आयम्बिक फुट है। किसी भी वर्ड में अनस्ट्रेस्ड पहले एक केवल होना चाहिए और एक स्ट्रेस्ड, तो ये जहां पर भी ये पेयर आएगा उसको हम आयम्बिक फुट बोलेंगे। फुट तो है ही ये, लेकिन आयम्ब क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये दो है, पहले अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड, तो इसको हम आयम्ब बोलेंगे। आयम्ब यानी पहले अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड, या लो पिच साउंड पहले और हाई पिच साउंड बाद में, तो इसको हम आयम्बिक बोलेंगे। ठीक है। अब आप देखिए, किसी भी पोएट्री को पढ़ने का इसी तरीका होता है। देखिए, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, इसका मतलब ये होता है। तो इसको हम आयम्ब बोलेंगे। आयम्ब कहीं पर भी बोला जाए तो एक फुट में पहला वाला जो साउंड होगा वो लो पिच का साउंड होगा, और जो दूसरा वाला सिलेबल होगा, दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो हाई पिच साउंड होगा। और अगर ऐसे एक वर्ड में ऐसे दो दो, यानी एक फुट में अगर ऐसे दो दो अलग अलग आते हैं तो उनको हम आयम्बिक फुट बोलेंगे। यानी एक पूरा पेयर, यानी एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, ये पूरे एक बोल देंगे, इसको आयम्ब बोलेंगे। आयम्ब, आयम्ब मीन्स अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड और ओनली टू होने चाहिए ये, तो ये आयम्ब कहलाएगा। ये रूल है, आयम्बिक फुट। अब देखो, ये पोएट्री में समझाने के लिए बताया गया, ये पहला है आयम्बिक फुट। अब अगर मान लीजिए किसी भी पोएट्री में, किसी भी पोएम में अगर ऐसे फुट 5 हो, ऐसे 5 पेयर हो, देखिए ये 1, ये 2 है ना, ये 2 इसको मिला के, और ये 3, ये 4, ये थोड़ा सा गलत हो गया कहीं, टॉल्स अलग आएगा, therefore कर्फ्यू टॉल्स, ये रेड है। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहां पर क्या है, मैं आपको आयम्बिक फुट वाला दिखाता हूं एक एग्जांपल। Yes, I am going to explain you iambic pentameter. Mostly sonnets written by Shakespeare are written in iambic pentameter. So these are some rules which structure or make the line in
proper way to make sound which may be very melodious for our ear to listen, because these syllables make the line melodious, and these are rule or pattern which we have to follow, and Shakespeare has followed so many patterns, and this is the very special pattern in which all the sonnets are depend. iambic pentameter. अब आप देखिए, इसको मैं पूरा समझाऊंगा आपको, फिर देखते हैं। देखिए अब आप इसको, आयम्ब का मतलब, ध्यान दीजिए, आयम्ब का मतलब, फिर से आयम्ब का मतलब, आयम मीन्स होता है टू। आयम का मतलब टू, यस, आयम का मतलब टू होता है, ठीक। आयम्बिक मतलब दो। कौन से टू? कौन से टू? पहले ये मून, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीव, इसको इक्टस। ये स्ट्रेस्ड के लिए होता है, स्ट्रेस्ड, और ये अनस्ट्रेस्ड। तो ऐसे अगर पेयर अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, अगर ये 5 पेयर हो किसी लाइन में, तो आयम्बिक तो इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये अनस्ट्रेस्ड पहले है और स्ट्रेस बाद में है, ठीक है। आयम्बिक क्यों कहलाएगा ये? आयम्बिक इसलिए कहलाएगा, देखिए आयम्बिक इसलिए कहलाएगा क्योंकि आयम का मतलब क्या होता है कि हर पेयर में क्या हो, ये 1 2 3 4 5, अगर ये 5 पेयर हैं ऐसे 1 2 3 4 5, और 5 पेयर में क्या खास बात है कि पहला वाला जो है, पहला वाला अनस्ट्रेस्ड होगा, अनस्ट्रेस्ड, और दूसरा वाला होगा वो स्ट्रेस्ड। ऐसे अगर पेयर होते इसको आयम्ब बोलते हैं, या आयम्बिक आप समझ सकते हो, ये तो एडजेक्टिव हो गया आयम्बिक। पेंटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी लाइन में अगर 5 हो, तो ये 1 2 3 4 5, ये पेंटा इसलिए, पेंटा मीन्स होता है 5। आयम्ब का मतलब होता है अगर इसमें स्लैग्ड या स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, ये दोनों साथ में आते हैं, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, तो आयम्ब बोलेंगे। पेंटा इसलिए 5 होता है, मीटर यानी 5 हो तो इसको मेजरमेंट। तो ये अगर पैटर्न कभी होगा तो इसको बोल रहे हैं आयम्बिक। किसी भी लाइन में अगर ये 5 पेयर हो तो आयम्बिक पेंटा मीटर, यानी जो फुट बने हुए हैं, जो 5 फुट है, ये 5 फुट हुए ना, 1 फुट ये हुआ, एक ये हुआ, 3 4 5, पेंटा यानी 5 फुट या 5 मीटर बोल सकते हैं हम। आयम्ब इसलिए क्योंकि अनस्ट्रेस्ड पहले है, स्ट्रेस्ड बाद में, तो आयम्बिक पेंटामीटर। देखिए इसको क्या बोलेंगे, देखिए यहां पर इसको ध्यान देना है, ये अनस्ट्रेस्ड है। If winter comes, can spring be far behind? ऐसे पढ़ेंगे इसको। If winter comes, can spring be far behind? If winter comes, can spring be far behind? Behind. This is the way how to pronounce it. ये तो दूसरी फॉर्म है, आयम्बिक के देखते हैं। Yes. Shall I compare thee to summer's day? ये भी आयम्बिक पेंटामीटर है। देखिए आयम्बिक है, देखें
देखिए यहां पर ये जो लाइन है आयम्बिक, सो लॉन्ग 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, तो 5 फुट बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस, तो यहां आयम्ब हो गया 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। आयम्बिक 5 को हम पेंटा बोलेंगे, आयमिक पेंटा मीटर बोल देंगे, क्योंकि इसमें 5 पेयर का यूज हुआ है, यानी 10 इसमें क्या यूज हुआ है, 10 सिलेबिक है ये, एक वर्ड में 2 सिलेबल होगा और दोनों अलग अलग फीट होगा। देखिए क्या बोलेंगे, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, so long lives this, and this gives life to thee। ऐसे पढ़ेंगे, दडम 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 दडम, the unstressed, dumb stressed, the dumb, the नीचे dumb, the dumb, the dumb, dadam 5, so 5 feet. A foot has 2 syllables and an iambic feet has 1 unstressed syllable followed by 1 stressed syllable, to be or not to be, that is the question Hamlet। There are so many things और भी है। जब हम इस नियम से पोएट्री को पढ़ते हैं, देखिए ये भी एक फॉर्म है, लेकिन मैं इस अभी आज तो नहीं बताऊंगा, अगले में बताएंगे। आज हम केवल आयम्बिक पेंटामीटर बता रहे हैं। अब देखिए ये इसमें, ये देखिए ये भी आयम्बिक है, 1 2 3 4, इसमें 4 ही फीट है, तो ये टेट्रा आयम्बिक टेट्रामीटर कहलाएगा ये। देखिए इसमें, देखिए ध्यान से समझिए, ये आयम्बिक इसलिए क्योंकि देखिए अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, तो ये 1 फुट हो गया, और इसमें अनस्ट्रेस्ड, तो ये आयम्बिक हो गया, ये आयम्बिक। और इसमें देखिए 1 2 3 4 है, तो टेट्रा हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब टेट्रा मीन्स 4, तो iambic tetrameter, these lines have been written in iambic tetrameter। So many poems like let me not to the marriage of true minds and shall I compare thee, these are also written in iambic pentameter। तो those lips, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, those lips that love's on hand did make breathe for the sound that said I hate, to me that languish for her sake, but when she saw my woeful state। ये भी है, इसमें कौन सा है, 1 2 3 4, ये भी आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी है। straight in her heart did mercy come, chiding that tongue that ever sweet was used in giving gentle doom, and taught it thus and you to greet। ये भी आयम्बिक पेंटामीटर है। देखिए क्या है, देखिए 5 है इसमें, one day I wrote her name upon the strand, but came the waves and washed it away। अभी मान लीजिए किसी लाइन में 1 मीटर 1 फुट कम हो, तो उसको हम कैटलिक
कैटालिटिक बोलते हैं, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाले समझ में आ गए होंगे, और भी आप थोड़ा सा पढ़िए। अब कभी कभी ऐसा भी आएगा, उसको दूसरा बोलते हैं, अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन और भी बहुत सारे नए नए होते हैं। जैसे कि अभी तो हमने आयम्बिक पढ़ा है। आयम्बिक मीन्स अनस्ट्रेस्ड पहले, स्ट्रेस्ड बाद में। और हम आगे कौन सा पढ़ेंगे? और ट्राइकेइक। अब ये ट्रोकेइक जो होता है, ये जस्ट उसका उल्टा होता है। ट्रोकेइक यानी ट्रोकी, अगर पहले स्ट्रेस्ड है बाद में अनस्ट्रेस्ड है तो ट्रोकेइक होगा, उसको ट्रोकेइक बोलेंगे। यानी पहले एक टच फिर ब्रीव, यानी पहले हाई साउंड हाई पिच, फिर बाद में लो पिच। स्ट्रेस्ड पहले, अनस्ट्रेस्ड बाद में, तो इसको हम ट्रोकेइक बोलेंगे। और अगर अनस्ट्रेस्ड पहले स्ट्रेस्ड बाद में तो आयम्बिक बोलेंगे। तो ये अगर पहले ये लिखा हुआ है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड बाद में, तो इसको हम ट्रोकेइक बोलेंगे। जैसे यहां पर देखिए लिखा है, अभी इसको आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इन डिटेल बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, so in the next video I would like to explain. If you have a comment, then if you comment me, then I will explain that thoroughly, because I would like to inspire for some information offered by you. Otherwise what's the need? Because I am teaching mathematics, I am making so many videos in mathematics, so I have no extra time to make this such types of the videos, but I also love this literature also. So if you have time, if you want to like me and make me aware that you must make some videos for this subject, then your comments will always be welcomed. ट्रोकेइक मतलब हम थोड़ा सा इसको बताते हैं। जैसे अब देखिए इसमें क्या लिखा है, टाई पहले है गर बाद में, टाइगर। देखो इसको क्या पढ़ते हैं, टाई स्ट्रेस्ड है, अगर अनस्ट्रेस्ड है, टाइगर टाइगर। बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। In the forest of the night, tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. तो ऐसे इसको पढ़ते हैं। तो thank you very much. I am sorry if I have disturbed you, and for that, and unknowingly if I say something which is against your will, then I am subject of pardonable for you. Please, you all have to comment, and then if you comment, then I will make you sure, and I will also teach you grammar, accurate grammar. For example, conditional sentences, clauses. Clauses means principal clause, subordinate clause, coordinate clause, noun clause, adjective clause, adverb clause. These are the clauses. And conditional sentences, causative verbs, which are so important, very difficult to learn. And if you aware, then you will be wholly prepare for the English speaking. And also, if you are a student, then you will get most mark as usual. Then as usual. ठीक है? Okay. Thank you very much.